Hello, good morning, all of you guys. Very good morning to one and all present over here. I think my audio and video is clear to all guys. Audio और video clear है सब लोग को? Yes or no? Yes. Okay. Very good. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Yes. Have your full energy in the morning, right? एकदम पूरी energy के साथ आप लोग attend करिए. A very good morning. Today we are going to start with a very important topic again, improper integrals. And I think this topic you haven't studied in your engineering classes, right? कभी भी आप लोग ने ये engineering में इसको seriously नहीं लिया होता है ऐसे topic को, because these are somewhat very difficult to understand, right or not? So हम लोग वैसे topics के अंदर से कई बार ये questions आ जाते हैं गेट के अंदर. So वैसे topics हम लोग आज देखने जाने वाले, that is improper integrals. और अगर आप गेट का syllabus देखोगे ना, तो उसके अंदर भी वहां पे लिखा होता है इन प्रॉपर इंटीग्रल्स. जब आप सेक्शन पूरा देखोगे तो देयर इट इज रिटन इन सिलेबस आल्सो दैट इट इज रिटन दैट इन प्रॉपर इंटीग्रल्स आर देयर इन टॉपिक, राइट. अगर गेट का सिलेबस अगर आप लोग देख लो कोई भी ब्रांच का, तो वहां पे लिखा होता है कि इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर इन प्रॉपर इंटीग्रल है वहां पे, ठीक है. दैट इज रिटन ओवर देयर, ठीक है. तो आप लोग के पास ऑब्वियस बात है, ये टॉपिक जो है सबके लिए अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Very important topic to all of you, a very important topic for all of you, right? This is very simple topic and again very important topic. Yes, I am waiting for 2 more minutes for the students to join, as it is morning class. Everyone are getting late to join the class in the morning, right? So और मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ सबका ज्वाइन होने के लिए, and then we can start off with the new topic, that is improper integrals. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे improper integrals. I hope you understood all the concept of definite integral in the last class, है ना, which I have taught in the last class. I hope you understood that all topics, because that are very important, and somewhere you will get some questions on that also, right? In GATE also you will find some questions based on definite integrals. आप लोगों को क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो definite integral का आएगा if you are giving any competitive exams other than GATE also, right? If you are giving ESE exam, or if you are giving BARC exam, ISRO exam, then you will get that questions in that. Clear, right? Good morning to one and all present here again. Those who have entered late, a very good morning to all of you guys, right? You just joined the Telegram channel. I will give you the notes of today's lecture, last lectures, right? So दोनों की notes भी मैं आज आप लोग को दे दूंगा, ठीक है. Very good guys, very good. चलिए. Okay, 1 more minute I am waiting, and then we can start with our topic, improper integrals, right? 1 more minute I am waiting over here. So the serious students are always joining on time, right? सारे students जो है वो serious जो पढ़ना चाहते हो तो सारे time पे join हो रहे, right or not? For some students I have to wait. Yes. हाँ दर्शन, वो देखते हैं हम डाउट्स, मतलब अगर लास्ट में टाइम रहता है तो लास्ट में हम सॉल्व कर देंगे, या तो हम कल भी कर, मतलब शाम को भी कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम फॉर दैट, राइट? इट विल हैव नो प्रॉब्लम. डाउट्स वी कैन सॉल्व. ओके ओके, देखो स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी. वेरी गुड. चलिए, बस अब ज्यादा हम वेट नहीं करते. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल टॉपिक से. So the word is improper integral. Now these integrals are definite integrals only, right? Improper integral जो है वो आपको definite integral जैसे ही दिखेंगे, बट ये होंगे improper. और improper का मतलब क्या है वो सबसे पहले हम लोग को समझना है, ठीक है. improper का मतलब क्या है वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे. So you can see over here there are two types of improper integral. One is improper integral of first kind and second is improper integral of second kind, right? ऐसे नाम ही ऐसा दिया हुआ है, first kind and second kind, ठीक है. So first kind improper integral you can see over here. So it will have a definite integral is improper if you are having any one limit as infinity limit. See over here. आपका कोई भी डिफाइनाइट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब बोला जाएगा कि अगर कोई एक लिमिट जो है ना वो आपकी इंफिनिटी हो जाए, या तो अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी हो जाए या लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी हो जाए, राइट? फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर दिस आर योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स.
See over here, it is written over here 0 to infinity e to the power minus x dx. Here it is written minus infinity to 0 e to the power x square dx. Here it is written minus infinity to plus infinity e to the power minus 2x square dx. So such a type of integral are known as improper integrals of first kind. Can you see? Right? So if any one limit is infinity, if any one limit is infinite, then such type of integrals are said to be improper integrals. अगर कोई भी लिमिट आपका इनफाइनाइट हो गया ना, अपर लिमिट इनफाइनाइट हो गया या लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो गया, राइट? अपर लिमिट अगर आपका इनफाइनाइट हो गया या तो लोअर लिमिट आपका इनफाइनाइट हो गया, तो वैसे इंटीग्रल्स को हम लोग बोलेंगे इनप्रॉपर इंटीग्रल. समझ आ गई बात? सो यू हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, इनप्रॉपर इंटीग्रल्स आप लोग ने देखे होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि इसको इनप्रॉपर इंटीग्रल बोला जाता है. ठीक है? सो दिस इज द इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. ओके, आपको ये क्लियर हुआ? व्हाट इज द इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड? राइट और नॉट? यस. सो इनप्रॉपर इंटीग्रल इज ऑब्वियसली अपर लिमिट हो सकता है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो सकता है, या तो दोनों इंफिनिटी पे आ सकता है. वैसे इंटीग्रल को हम बोलेंगे इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. ओके, नाउ इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, राइट? हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बट हम लोग क्या करते हैं, एक बार दोनों काइंड को समझ लेते हैं, मतलब दोनों इनप्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग एक बार समझ लेते हैं. सिर्फ दो ही टाइप के इनप्रॉपर इंटीग्रल होते हैं. तो आप लोग के पास इनप्रॉपर इंटीग्रल जो है वो सेकंड टाइप का है. वो आप लोग के पास होता है a to b f of x dx is improper. See, a to b f of x dx is your improper integral of second type. Now second type is what? If a and b are finite. See, अगर मुझे ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रल की लिमिट्स है ना a और b, अगर वो फाइनाइट होती है, बट f of x is infinite for some x belongs to a and b, right or not? मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम देखते हो कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूं -1 to 1 1 by x dx, -1 to 1 1 by x dx, तो आप बोलोगे सर ये तो फाइनाइट इंटीग्रल है. नहीं, ये फाइनाइट इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि एक आपके पास x इज इक्वल टू 0 पे आपका 1 by x जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. 1 by x जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होता है, और ये x इज इक्वल टू 0 आपका इन द इंटरवल -1 to 1 आता है. देखो, इन द इंटरवल -1 to 1 आता है, राइट और नॉट? So you can say that your function 1 by x is discontinuous at x is equal to 0 because the value of the function at x is equal to 0 is not defined, right? तो ये जो फंक्शन है ना आप लोग का, ये फंक्शन है डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर, दिखता भले हो डिफाइनाइट इंटीग्रल जैसा, but this function is discontinuous function, and I cannot integrate such a function by using normal definite integral methods. आप लोग डायरेक्टली इसके आंसर्स नहीं लिख सकते, आप लोग डायरेक्टली इसको ln x नहीं लिख सकते guys, because it is your discontinuous function. See, जब हम definite integral के अंदर कुछ भी लिखते हैं ना, whenever I am writing anything in the definite integral, I always use the word that integration a to b f of x dx is equal to something where f of x is continuous function between a and b. But ये कैसे functions हो गए आप लोग के पास? continuous नहीं है, कहीं ना कहीं between a to b कोई point पे इसकी वैल्यू जो है ना वो not defined होगी, वो not defined होगी. तो such type of integrals are known as improper integrals of second type. See over here, a and b is finite, but f of x is infinite for some x belongs to a. आप देख सकते हो ना, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 log x dx, तो आप बोलोगे कि सर मेरा जो log 0 जो होता है ना, log 0, ये log 0 इंफिनिटी के बराबर होता है. log 0 जो है ना वो इंफिनिटी के बराबर होता है, राइट और नॉट? ठीक है, समझ आया बात? सो log 0 इंफिनिटी हुआ, मतलब यार a to b में नहीं हुआ, आपको देखो क्लोज्ड इंटरवल बोला इधर, तो a पे भी कभी कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है, b पे भी नॉट डिफाइंड हो सकता है. क्लियर ये बात? सो हियर आप लोग देख सकते हो कि log 0 जो वैल्यू है वो इंफिनिटी हो गई. दैट मींस व्हाट? यू कैन नॉट से दैट your function is this integral is definite integral. ये आपका improper integral हुआ, क्योंकि log x is discontinuous at x is equal to 0. log x is discontinuous at x is equal to 0, right? So आप लोग को ये finite, आपका आंसर finite आ सकता है. Then अगर ये मतलब अगर कोई भी तुम्हारा improper integral का आंसर finite आ गया, if any improper integral you get a finite answer, then it is said to be convergent improper integral. Convergent मतलब आंसर finite आया. You are having the value of the function at some point as infinity, then also you are getting a finite answer. That means this improper integral is a convergent integral. This improper integral is convergent integral if I am getting finite answer. If I am not getting finite answer, guys,
if I am not getting finite answer, then I will say that this improper integral is not convergent, right? That means this improper integral is divergent. So there is a total difference between definite integral and improper integral. Improper integral are the integration of that type of functions which are discontinuous between some points, which are discontinuous at the between the limits a and b, while the definite integral is the integration of such functions which are continuous between a and b, right? This is the major difference between improper integrals and definite integrals. याद रहे हम लोग definite integrals की property improper integrals के अंदर use नहीं कर सकते, right? You cannot use, correct, right? Okay, so that we will see how to integrate. We will see how to integrate, that we will see. Just I am telling you what is the difference between definite integral and your improper integral, right? So I hope you guys understood what is the difference between both, right? सब लोग को समझ में आया ये? सब लोग को guys quick response fast, चलो सब लोग को what is the meaning of definite and improper integrals? ठीक है, convergent वाला, convergent मतलब अगर तुम्हारा इसका आंसर जो है ना convergent मतलब if you are having the answer of any improper integral as a finite answer, अगर मुझे किसी improper integral का finite answer आ गया, that means I will say that integration is convergent. Otherwise I will say that integration will get that integration answer. अगर मेरा finite नहीं आया तो मैं बोलूंगा सर इसका आंसर ये इंटीग्रेंड डाइवर्जेंट हुआ है. डाइवर्जेंट मतलब उसका आंसर इंफिनिटी आ गया होगा, राइट? अंडरस्टूड मी? अब समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ओके, सो दिस इज द थिंग, राइट? सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप देख सकते हो कोई एक पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, राइट? होल इंटरवल वी आर हैविंग अ फाइनाइट आंसर. अगेन देखो, definite integral means whatever your function you are putting in the definite integral, that function is continuous between the limits a and b which is given in definite integral. That is the meaning of definite integral. And in indefinite, at some point between a and b your function will be not defined. That means you can say your function is not continuous, and if my function is not continuous I cannot use definite integral properties to solve such type of questions. Simple. Clear ये बात? Clear ये बात सब लोग को? Right or not? Okay. करेक्ट. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे हम लोग बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा एंड देन दिस टॉपिक विल बी इंटरेस्टिंग, राइट? लेट अस टेक सम क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, you can see over first just notice which type of improper integral is this. It is of first kind or second kind, right? It is of first kind or second kind. Just notice this thing. It is of first kind or second kind, first kind or second kind, राइट? सबसे पहले सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये, अगर आपको क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख के देता हूं आप लोगों को. 1 to the infinity x to the power -4 dx, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? ये आप लोग का क्वेश्चन, इसका हम लोग को आंसर ढूंढना है. अगर आप देखोगे इधर इसका जो अपर लिमिट है वो इंफिनिटी हुआ है, मतलब लिमिट्स आर इंफिनिटी, लिमिट्स आर हैविंग इंफिनिटी, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो फर्स्ट काइंड का हो गया. ठीक है सर, अगर ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, सो आई विल इंटीग्रेट दिस नाउ अकॉर्डिंग टू आवर इंटीग्रेशन फॉर्मूला. x to the power -4, x to the power -4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x to the power -4 plus 1 upon -4 plus 1. So you will write like this, x to the power -3 upon -3, and here you will write 1 to infinity. इधर आप लोग लिखोगे 1 से लेके infinity. Now you solve this thing, you take out what 1 upon -3 common. अगर तुम 1 upon -3 को कॉमन निकाल देते हो, so first you will put instead of x the upper limit, right? आप लोग पहले क्या करोगे? अपर लिमिट इधर सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, राइट? और नॉट अपर लिमिट आप लोग सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, तो आप बोलोगे पहले सर ये हो जाएगा मेरा infinity to the power -3, then you will substitute the lower limit, that is 1 to the power -3, 1 to the power -3, ऐसा आप बोल दोगे. infinity to the power -3 and 1 to the power -3. ओके सर, अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि सर ये मेरा जो है, ये जो मेरा है इंफिनिटी टू दी पावर -3 का मतलब क्या? तो मैं इसको साइड पे आपको बताता हूं. इंफिनिटी टू दी पावर -3 दैट इंप्लाइज सम इनफाइनाइट वैल्यू टू दी पावर 3 हो गया, एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सो दैट मींस ये चीज आप लोग इधर 0 रख दोगे, एंड -1 टू दी पावर 1 टू दी पावर -3, तो आपका 1 ही आंसर आ जाएगा. सो ओवरऑल आपका आंसर जो है वो 1/3 आया. दैट मींस आई कैन से दैट
This integral is converges to what? 1 by 3. This integral is what? Converges to 1 by 3. This is the definite, this is your improper integral of first kind, because the any one of the limit a or b is infinity. So हम लोग इसको जब first kind का definite integral improper integral होता है, then we have to solve like this, right? Then we have to solve like this. So I hope you understood how I have solved this question, right? I hope you understood how I have solved this question. क्लियर ये बात सब लोग को, राइट और नॉट? सब लोग को क्लियर? वेरी गुड, सब लोग को ये क्लियर हो गया, राइट और नॉट? सो आई हैव वन स्टेटमेंट फॉर दिस, आई हैव वन स्टेटमेंट फॉर दिस. अगर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछते तो हमेशा एक चीज याद रखना, दैट इज ऑलवेज अ स्टार मार्क ओवर हियर और हैशटैग ओवर हियर. सो यू यूज्ड टू राइट लाइक दिस whenever you are having any integration in the form of this. Suppose your integration is in the form of a to infinity 1 upon x to the power p, 1 upon x to the power p dx, 1 upon x to the power p dx, where again a is greater than 0, where a is again greater than 0, it will have two possibility. It will be having two possibility. Either it can convergent, either it can have convergent, and either it can have divergent. डाइवर्जेंट मतलब यार आंसर इंफिनिटी आता है, डाइवर्जेंट मतलब आपका आंसर इंफिनिटी आता है. तो ऐसे इंटीग्रल आइदर कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं और डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं. व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इंटीग्रल टू बी कन्वर्जेंट? द कंडीशन फॉर इंटीग्रल टू बी कन्वर्जेंट इज p शुड बी ग्रेटर देन 1. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इंटीग्रेशन टू बी डाइवर्जेंट? देन अगर p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, देन इट विल बी डाइवर्जेंट. अगर आप लोग का p का वैल्यू है ना लेस देन 1 आया तो ये हमेशा ऐसे इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गए, याद रखना. और जब अगर कन्वर्जेंट हुआ ना, अगर आपका ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ तो कन्वर्जेंट का आंसर डायरेक्ट का फॉर्मेट उसको याद रख लेना. कन्वर्जेंट आंसर का डायरेक्ट फॉर्मेट है सर, दिस इज इक्वल टू p minus 1 into a to the power p minus 1 into a to the power p minus 1. This is the answer of convergent. 1 upon p minus 1 into a to the power p minus 1 into a to the power p minus 1. So if you see this question, अगर हम लोग इसका डायरेक्टली आंसर, चलो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन हमारा था 1 से लेके इंफिनिटी 1 upon x to the power 4 dx, x to the power minus 4 मतलब 1 upon x to the power minus 4 dx. So you can see over here, this is your p that is equal to 4, that is greater than 1. So हम लोग बोलेंगे ये इंटीग्रल मेरा कन्वर्जेंट हुआ, ये इंटीग्रल मेरा कन्वर्जेंट हुआ. कन्वर्जेंट का डायरेक्ट आंसर होता है 1 upon p, 1 upon, you can see over here 1 upon p minus 1. So p is हमारा 4 था, 4 minus 1 into p का पावर, see a का पावर p minus 1. So a का पावर p minus 1, a का पावर p minus 1, that is 4 minus 1. So if you write over here, this is 1 by 3. Now what is a? A is this limit, a is limit. See a also greater than 0, a भी आपका greater than 0. So 1 का power 4 minus 1, that is 3. So your answer is directly 1 by 3. So this is the very famous, very common improper integral. इसलिए इस इंटीग्रल के डायरेक्ट रिजल्ट्स हम लोग याद रखते हैं, राइट? दिस इज वेरी कॉमन improper इंटीग्रल, 1 upon x to the power p, 1 upon x to the power p, ये कॉमन improper इंटीग्रल है. अगर तुम इधर p की वैल्यू लेस देन 1 रख दोगे ना, तो ये जो improper इंटीग्रल होगा आप लोग का वो इंफिनिटी की ओर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इधर सेव, अगर मैंने इधर ऐसा कर दिया, if I have written integration suppose 1 to infinity, and if I am writing the value of p as less than 1, चलो less than 1 अगर मैंने इसको लिख दिया -3 dx. सो अगर आप इसको देखोगे तो सर ये मेरा इंटीग्रल हो गया 1 से लेके इंफिनिटी x to the power 3 dx हो गया. और जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा x to the power 4 by 4, 1 से लेके इंफिनिटी. नाउ इफ यू पुट द अपर लिमिट ओवर हियर, इफ यू टू पुट अपर लिमिट, तो दिस विल गिव यू इंफिनिटी टू द पावर 4 माइनस इंफिनिटी टू द पावर 4 माइनस आप लोग को मिल जाएगा ये 1 to the power 4. So this value is infinity, this value is what? Infinity, because infinity minus 1 is infinity and divide by 4 also, that is infinity. So if you are taken the value of p is -3, which is less than 1, that means your improper integral of first kind will diverge. And divergence का मतलब होता है, that means you will get the answer as infinite. You will not get finite answer. You will not get finite answer whenever your p is less than 1. You can check that. कोई भी p की वैल्यू ले लो less than 1, you will not get the finite answer over here. Correct? If
इफ योर p इज इक्वल टू 1, राइट, अगर आपने इधर p को जो है वो इक्वल टू भी 1 भी ले लिया होता ना, तो ये 1/x हो जाता, और 1/x होता है ln x। ln x के अंदर वापस तुम लिमिट्स रखते ना, वापस आप लोग का ये फाइनाइट नहीं हो सकता था। क्लियर ये बात सब लोग को? you got this point guys? You cannot get a finite answer over here, you cannot get finite answer, right? I hope you guys got clear about this topic, right? समझ में आया सब लोग को? इतनी चीज समझ में आई? yes or no, right? समझ में आया? ये फर्स्ट काइंड इंटीग्रेशन को है, सिंपल से हम लोग को ये चीज को याद रखना है। तो ये आप लोग का पहला फेमस इनप्रॉपर इंटीग्रल हो गया, राइट? फर्स्ट फेमस इनप्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट फेमस इनप्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है? ओके, करेक्ट, सी ओवर हियर। सो ये इनप्रॉपर इंटीग्रल आप लोग का फर्स्ट काइंड का हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट काइंड को अगर देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट अगर एक और फेमस इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को अगर हम लोग देखें, famous improper integral of first kind is again you are having second like this. Suppose you are having 0 to infinity, suppose you are having 0 to infinity, I am having that integral over here, 0 to infinity e to the power minus ax, e to the power minus ax cos px dx। सपोज आपके पास ऐसा इंटीग्रल हुआ और ये 0, तो ये आपका वापस इनप्रॉपर इंटीग्रल जो है ना वो फर्स्ट काइंड का हुआ, इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये आप लोग का वापस इनप्रॉपर इंटीग्रल जो है, दैट इज द इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड गाइस, राइट? अगेन अगर मुझे इस इनप्रॉपर इंटीग्रल के दो कंडीशन है, डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखते हैं बिकॉज ये बहुत फेमस इंटीग्रल है। देखो तुम इसको जब सॉल्व करने जाओगे ना, यू हैव टू यूज द पार्ट्स मेथड, और फिर वहां से डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रल के रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है? सो एक वापस इसका एक हो जाता है, ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है सर, ये मेरा कन्वर्जेंट हो सकता है, और एक और चीज होता है यस, ओके, ये मेरा कन्वर्जेंट हो सकता है, और ये मेरा हो जा सकता है डाइवर्जेंट, ये मेरा हो जा सकता है डाइवर्जेंट, ठीक है? सो ये डाइवर्जेंट हो गया, एक कन्वर्जेंट हो गया। अब आप देखो ये जो चीज है ना, ये कन्वर्जेंट कब होगी? तो कन्वर्जेंट की ये कंडीशन है ऐसे इंटीग्रल के लिए कि जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आप लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। नाउ आई हैव नो टाइम टू सॉल्व व्हाई इट इज कन्वर्जेंट व्हेन a इज लेस देन 0 गाइस, इसको हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है, ठीक है? बिकॉज दिस आर द स्टैंडर्ड इनप्रॉपर इंटीग्रल्स, क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट में हो सकते हैं, राइट? क्वेश्चन कभी भी आए तो इसी के फॉर्मेट में हो सकते हैं। सो डायरेक्टली जब कन्वर्जेंट हुआ तो कन्वर्जेंट की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर मेरे पास ये कन्वर्जेंट आया तो आई कैन गेट द वैल्यू एज a स्क्वायर अपॉन, सॉरी नॉट a स्क्वायर, इट इज a अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इट इज a अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट? सो कन्वर्जेंट हुआ ना तो आपका आंसर डायरेक्टली आप लिखोगे a अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। डाइवर्जेंट हुआ तो डाइवर्जेंट तभी हो सकता है जब a आपका वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0, a वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर a वैल्यू लेस देन 0 हुआ इट इज कन्वर्जेंट, अगर a वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया ना तो दैट इज योर कन्वर्जेंट इंटीग्रल। फॉर्मेट याद रखिए, इट इज e टू द पावर, इट इज e टू द पावर आप लोग का जो है, ओके एक मिनट सिर्फ आप लोग का कंडीशन जो है, एक मिनट इधर सिर्फ कंडीशन, a अगर ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 तो कन्वर्जेंट, a लेस देन 0 तो डाइवर्जेंट, ठीक है? हाँ, करके देखोगे तो वही आंसर आएगा, करेक्ट और नॉट? बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आप लोग के पास इसका इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है इन सेंस यू हैव टू यूज द पार्ट्स एंड ऑल दैट, एंड इट विल गिव अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, रिगरस प्रोसेस, राइट और नॉट? So you can directly use this results over here. So if a is greater than 0, if a is greater than 0, अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग के पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ये लेस देन 0 हो तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, सी इफ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ओवर हियर, अगर मैं एक क्वेश्चन इधर से लेता हूं तो आपके पास एक क्वेश्चन है मेरे पास इस तरीके से, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e to the power minus 2x e to the power minus 2x cos x dx. Now one thing you can do, you can use by parts and take find the value of integration, and you can put upper limit and lower limit, but that will be a very long and rigorous process. अगर आप इसको पार्ट से इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसके अंदर आप लोग वैल्यूज रखोगे, दैट विल गिव यू अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस गाइस, ठीक है? इसलिए हम लोग पार्ट से इसको इंटीग्रेट करना इग्नोर करते हैं। दिस इज डायरेक्टली रिजल्ट, I will directly compare this result with my standard integral, that is a to infinity. You can see over here I have written, sorry, 0 to infinity only.
we are having 0 to infinity e to the power minus ax with cos px. So you can see that a value is 2 which is greater than 1. तो ये जो मेरा इंटीग्रल होगा ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा. ये मेरा इंटीग्रल था, ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल हो गया. याद रखें कि ऐसे सब टॉपिक्स आप यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट सेम. इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज, राइट. वहां पे ऐसे टॉपिक्स आते थे. वहां पे हम लोग पढ़ते थे कि ये अगर a इक्वल टू 2 आ, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो ये दिस इज योर कन्वर्जेंट. एंड इफ it is convergent, then the value of integration is directly a upon a square plus p square. देखो अगर कन्वर्जेंट होता है तो उसका वैल्यू निकालना जरूरी है. सो कन्वर्जेंट बोल दिया, वहां से काम नहीं खत्म हो जाता, वहां पे हमको इसका वैल्यू निकालना है. तो a हमारे पास हो गया 2 अपॉन 2 प्लस मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. तो p इधर मेरे पास, इधर जो p होता वो 1 हो जाता. So that is p is equal to 1 over here. So 2 upon 2 square plus 1 square. So that will give you me 2 upon 2 square is 4, 1 square is 5, 1 square is 1. So 4 plus 1 is 5. So your answer is 2 by 5 over here. आपका आंसर जो है ना वो 2 by 5 आ जाएगा. समझ आ रही है बात सब लोग को? I think you got clear in this, right? आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? I think ये चीज आप लोग को एकदम से क्लियर हो गई. क्लियर ये बात? यस. राइट. क्या करो बैक. ओके, एक मिनट. चलिए, ये हमारा बैक इन प्रॉपर इंटीग्रल यानी लिमिट में. यस, इन प्रॉपर इंटीग्रल मतलब लिमिट में इन्फिनिटी. द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन प्रॉपर इंटीग्रल इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. You can see in the Laplace transform, Laplace transform is 0 to infinity e to the power minus st f of t. Laplace transform is improper integral, right or not? भाई आप लोग यूज कर चुके हो improper integral, ऐसा नहीं है, right? Laplace transform आप पढ़ चुके हो, that is a improper integral. Very good example. और डाइवर्जेंट के अंदर आप लोग का a less than 0, डाइवर्जेंट के अंदर शुद्ध आंसर इसका 0 आएगा. सॉरी, आंसर इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट. तो ये आंसर इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब आपका ये a का वैल्यू जो है ना वो लेस देन 0 हो जाए. मतलब आंसर तभी आपका इन्फिनिटी आ सकता है. शुद्ध समझ आ रही है बात? डाइवर्जेंट मतलब ये हो गया, ठीक है? डाइवर्जेंट मतलब आप लोग का आंसर इन्फिनिटी आएगा. क्लियर ये बात? ओके. सो आप लोग के पास ये दूसरा कैटेगरी था. सी हो रही है, दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. एंड थर्ड जो कैटेगरी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, वो आप लोग का ये थर्ड कैटेगरी होगा कि सपोज आपके पास इंटीग्रल कुछ इस फॉर्मेट के हुए, मतलब a से लेके इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस px dx, e टू दी पावर माइनस px dx, और इन माइनस इन्फिनिटी टू कोई भी एक ले सकते हो ना, माइनस इन्फिनिटी टू a e टू दी पावर px dx. सपोज ये देखो दोनों चीज सेम है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी है तो इधर माइनस है, इधर माइनस इन्फिनिटी तो p के आगे प्लस है, ठीक है? दोनों चीज एक जैसी होगी. सो अगर ऐसे टाइप के इंटीग्रल अगर हो गए तो ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट होंगे या कन्वर्जेंट होंगे. यस, ये इंटीग्रल आपके कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट होता होगा और कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट होगा. कन्वर्जेंट हो सकता है या तो ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट हो सकता है. दोनों में से एक केस हो सकता है बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. सो ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट तभी होगा जब आपका p का वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0. और ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट तब होगा, ये इंटीग्रल आप लोग का डाइवर्जेंट कब होगा बताओ मुझे? ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट है वो तभी होगा जब p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है. जब p का वैल्यू आप लोग का लेस देन इक्वल टू 0 होता है, देन इट इज डाइवर्जेंट. and convergent is this integral is convergent at greater than 0. p value is greater than 0, right or not? p value is greater than 0, तब आप लोग बोलोगे ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट हो गया. समझ रहे हो ना तुम लोग सब? ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? everyone is getting this point, right? So for example guys, if I am giving you one example for this, I am giving you one example of such integral. Now I want to find, see over here, I want to find over here the integration of, see, I am writing over here 0 to infinity and I want to find just integration of e raised to minus st into 1 dt, e raised to minus st into 1 dt. तो आप लोग बोलोगे, सी ओवर हियर, आप लोग इसको आंसर जब करोगे तो इसका आंसर अगर तुम लिखने जाओगे तो सर ये हो जाएगा मेरा e टू दी पावर माइनस st अपॉन माइनस s, e टू दी पावर माइनस st अपॉन माइनस s, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी, राइट और नॉट? e टू दी पावर माइनस st अपॉन s,
ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। सो व्हाट यू विल डू, आप लोग 1/1/-s को कॉमन ले लोगे, अपर लिमिट रखोगे, तो आप बोलोगे सर इधर e⁻⁻s इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस e⁻⁻s इंटू 0 आ जाएगा, -s इंटू 0 आ जाएगा, राइट और नॉट, -s इंटू 0 आ जाएगा। अब आप लोग के पास you don't know how what is the value of s, देखो you don't know what is the value of s, so there are two categories, s greater than 0, s greater than 0 and एक कैटेगरी होगी s लेस देन 0। अगर मेरा s ग्रेटर देन 0 होता है, s लेस देन 0, हमारा इंटीग्रल का आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, हमारा इंटीग्रल का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब मुझे इधर s की वैल्यू नहीं पता, अगर मैंने s को बोल दिया होता 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, इफ आई हैव टोल्ड that the value of s is 2 3 like that, then you can easily answer, but I don't know the value of s. So what I am doing, I don't know the value of s, for that what I am doing, I am taking first s is less than 0. So if you are substituting s less than 0 over here, see अगर आप लोग इधर s less than 0 इधर सब्स्टिट्यूट करते, तो अगर ये माइनस में होता, s का वैल्यू नेगेटिव होता, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देता, तो मेरा जो इंटीग्रल का आंसर होता वो 1/-s, अब इधर हो जाता मेरा e⁻∞ माइनस e⁻0 हो जाता। तो अगर आप ये चेक करो, ये मेरा आंसर जो है ना वो इंफिनिटी के बराबर आ जाता, क्योंकि e⁻∞ इंफिनिटी होता है, e is the 2.713 something, right, e is the value, is your value, the value of e is 2.713 something, and if you are taking infinity to that, you will get answer as infinity. But if I am having this s is greater than 0, see over here, everybody concentrate over here, if s is over here is greater than 0, then my answer would be like this, it is 1/-s. Now as my s is greater than 0, so my upper limit will be now, then my this term will be e⁻∞, क्योंकि अगर s आपका पॉजिटिव हो जाता तो ये माइनस आपका हटता नहीं, ये e⁻∞ बोला जाता और ये e⁻0 बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं दिस इज -1/s e⁻∞, see e⁻∞ is 0, that is 1/e⁻∞, and 1/∞ is 0, so ये आपका आंसर 0 आ गया और ये आपका आंसर -1 आ गया, so this will give you me 1/s, this is give me 1/s, and if you know this thing, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो अपना इंजीनियरिंग के अंदर, सर दिस इज व्हाट, सो सर दिस इज माय लाप्लास ऑफ 1, ये हम लोग बोलते हैं लाप्लास ऑफ 1, सर माय लाप्लास ऑफ 1 इज 1/s, provided this thing s is greater than 0. See over here I have written that my integral would be convergent if p is, ये p के जगह हमने ऐसे ही तो लिखा ना, ये p के जगह हमने क्या लिखा, ऐसे ही तो लिखा ना वहां पे, right or not? So provided my integral would be convergent, for that, for the convergence of Laplace, you always require a region of convergence, and what is that region of convergence? सर s शुड बी ग्रेटर देन 0, s आपका जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आपका ये लाप्लास का ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ 1 आप 1/s लिख सकते हो। अगर s मेरा वैल्यू लेस देन 0 हो गया, आई कैन नॉट राइट लाप्लास ऑफ 1 as 1/s, it will be infinite. So Laplace transform is a perfect example of improper integral of this kind. Improper integral of this kind is a perfect example. Any Laplace you can take, that is your perfect example of this kind. क्लियर हो रहा है सब लोग को, ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है? यस और नो गाइस, यस और नो, राइट राइट राइट, ओके, क्लियर ये बात, ओके करेक्ट। सो यस, डाइवर्जेंट में 0 कंसिडर करेंगे हम लोग, डाइवर्जेंट में हम लोग 0 को कंसिडर करेंगे, राइट और नॉट? सो जब 0 होगा तो डाइवर्जेंट में हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है, 0 को हम लोग डाइवर्जेंट में लिखेंगे, क्लियर ये बात, ओके ओके। सो कन्वर्जेंट में 1/p नहीं बोलेंगे यार, कन्वर्जेंट में आई विल नॉट टेल 1/p, ये आंसर आपके चेंज हो सकते हैं ना, अरे तुम देखो, इसलिए मैंने इधर स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लिखा, इसके अंदर हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर मैं e⁻⁻3s लिख दूं, e⁻−3t लिख दूं ना, तो वो आप लोग का आंसर जो है इधर इस फंक्शन के ऊपर भी, so I cannot write directly the answer, you have to just solve this question because this is very simple, कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है इसका, 1/p डायरेक्ट रिजल्ट मत आप याद कर लो, ऐसे सिंपल आ गया ना तो इसको सॉल्व कर लो। बस ये चीज याद रखनी कि अगर वो p जो है ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये p लेस देन 0 होता है, इंटीग्रल को देख के डायरेक्टली इनफाइनाइट बोल देना। अगर p लेस देन 0 होता है ना, तो इंटीग्रल को देख के डायरेक्ट उसको क्या लिख देना, इन्फिनिटी पे लिख देना। आप लोग समझ रहे हो ना, तुम लोग ये बात को समझ रहे हो आप लोग अच्छी तरीके से? ये समझ में आया? तीनों तीन इंटीग्रल आपका, तीनों तीन इंटीग्रल समझ में आया ना सब लोग को? यस और नो? यस, ओके
चलिए सब लोग वेरी गुड. प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स वेदर यू अंडरस्टूड ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल गाइस. क्या आप लोग को सबको समझ में आया दिस 3 टाइप ऑफ इंटीग्रल? ठीक है, करेक्ट. P ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग आंसर निकालेंगे, P लेस देन 0 के लिए हम लोग आंसर नहीं निकालेंगे. ठीक है, P लेस देन 0 के लिए हम आंसर नहीं निकालेंगे. दैट विल बी योर ऑलवेज डाइवर्जेंट, दैट विल बी डाइवर्जेंट. मैंने आपको लाप्लास वाला क्वेश्चन भी बताया. ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर. इफ आई एम टेकिंग दिस टॉपिक टू द इफ आई एम टेकिंग दिस अहेड, नाउ आई हैव टू सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप. सी अब मेरे पास आ जाता है इंटीग्रल जो है ना वो सेकंड टाइप का हम लोग सॉल्व करेंगे. सो दिस इज माय क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप. सी ओवर हियर गाइस, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना वो आपको दिखेंगे नहीं अच्छे. इसके क्वेश्चन आपको डिफाइनेट लगेंगे. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, सी द स्टूडेंट who has studied with me will not write these answer directly by using definite integral. See, लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका आंसर जो है 1/x² है. ये बोलोगे सर इसका इंटीग्रल तो बहुत इजी हो गया, x⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इधर ये लोग लिमिट रखेंगे -1 से 1, और फिर इसको बोलेंगे फिर इसको बोल देंगे सर ये हो जाएगा मेरा x⁻⁻1 अपॉन -1, और ये हो गया -1 का लिमिट और इधर 1 का लिमिट. तो ये हो गया सर हमारे पास x⁻⁻1. सो अगर मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ ना तो ये हो जाता है 1/x. ऊपर मेरा -1 ऊपर मेरा +1 हो गया, इधर -1 हो गया. अब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट मतलब 1/1 हो गया, तो 1 -1 अपॉन -1, तो वापस से +1 हो जाता, और इसको सीधे आंसर लिख देंगे -2. ऐसा करके ये आंसर को टिक करके भी आएंगे. बट दिस आंसर is totally wrong. This answer is totally wrong. You cannot write -2. Why I cannot write -2? Because if you see definite integral properly, this is from -1 to 1 and 1 upon x². And if you see, if you have a clear idea, this integral is not, or this function is not continuous at x is equal to 0. अगर मैंने इधर x is equal to 0 कर दिया ना तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है. एंड दैट 0 इज लाइंग बिटवीन -1 and 1. यार वो 0 जो है ना वो आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. देन यू कैन नॉट राइट दिस वैल्यू. आप उसको नहीं लिख सकते, राइट? आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज योर इनप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड. ये आपका इनप्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का. समझ आ रही है ना सब लोग को? ये बात समझ में आई? यू कैन नॉट राइट दिस डायरेक्टली -2. देखो ऑप्शन भी दिया होगा, -2 आपको ऑप्शन में दिया होगा, और अगर आपने लिख लिया ना, यू आर मेकिंग अ ब्लंडर मिस्टेक. फिर आप लोग के पास ऐसा कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि गेट के अंदर हमेशा इसमें आपको फंसाने की ही ट्राई करेंगे. एंड देन यू विल मेक, इफ यू आर राइटिंग आंसर -2, दैट विल बी योर ब्लंडर मिस्टेक. राइट कर. द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग अ वेरी गुड रैंक, they used to keep the record, or they used to keep notes of each and every point. वो हर एक चीज को समझ के लिखेंगे, then only they are getting very good marks, right? तभी उनके मार्क्स आते. एक एक चीज को वो समझते कि ये आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन नहीं है, ये इनप्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, right? Because I am getting a 1.0 between -1 to 1 where my function 1 upon x² is 0. So sir हम लोग क्या करें? What I have to do for solving such type of question? Always you have to split the limit. Always you have to split the integral over here. See how you are splitting the integral. So मेरे पास, हमें पता है कि 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? -1 से 0 को लिखोगे, 1 upon x² लिख दोगे dx, और फिर एक इंटीग्रल लिखोगे तुम लोग 0 से लेके 1 तक, 1 upon x² dx. This is the method of solving. This is the method of solving improper integral of second kind, right? जो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है वहां तक के आप लोग इंटीग्रल स्प्लिट कर दोगे. मेरा ये फंक्शन जो था 1 upon x², that is discontinuous at x is equal to 0. So what I will do, I will split my integral into two parts. First of all, I will take the limits from -1 to 0, and in the second part, I will take the limits from 0 to 1. Now, if I solve this question, now here I know the answer. This is answer. The answer of this integral is x⁻⁻1 upon -1, and here I will put -1 to 0. And over here also, the answer is x⁻⁻1 upon -1, and here I will put the limit 0 to 1. 0 to 1. Now, if I put over here the upper limit, I can take 1 upon -1 outside, or you can only take -1 outside, right? आप लोग सिर्फ -1 को बाहर ले लेते हो. So you can you have to put over here, the first thing is x to the power 0. So you will get over here x to the power 0 to the power -1. That means what? X to the power -1 is 1/x.
सो 1/0 आपका पहले आ जाएगा और फिर आप लोअर लिमिट रखोगे तो वो माइनस माइनस करके प्लस 1/1 आ जाता, प्लस 1/1 आ जाता। और इस इधर आप लोग कुछ भी रख लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट इधर जब हम सॉल्व करेंगे, इफ आई एम सॉल्विंग दिस थिंग विल गिव मी इंफिनिटी। और अगर मेरे पास ये दोनों इंटीग्रल में से अगर इसका आंसर मेरा इंफिनिटी आया, इंफिनिटी प्लस इधर कुछ भी आंसर आ जाता फाइनाइट आंसर, भले इसका कोई फाइनाइट आंसर आ जाता, but if I am getting out of this two integral, if any one integral is divergent, see over here, out of two, if any one is divergent, if any one is divergent, then also I can say whole integration, then also your whole I integration is divergent, दोनों अगर फाइनाइट होते तो मैं इसका फाइनाइट आंसर मुझे मिल सकता था, बट अगर ये दोनों इंटीग्रल में से एक डाइवर्जेंट हो गया, देन माय आंसर इज दिस इंटीग्रल विल डाइवर्ज, ये आपका इंटीग्रल जो है ना वो डाइवर्ज होगा, इट इज नॉट, इट्स वैल्यू विल बी नॉट -2, ये आपका डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगा। समझ रहे हो तुम लोग? ये समझ में आया सबको? यस और नो? ये आपका जो इंटीग्रल है वो आपका डाइवर्जेंट हुआ। दोनों में से एक अगर मेरा इनफाइनाइट आ जाता है, दोनों में से एक अगर इनफाइनाइट आ जाता है, your answer will be divergent, otherwise it will be convergent. If you are getting both the integrals at convergent, then only my whole integral will be convergent, otherwise it is divergent, I hope you guys got clear, guys, right or not? I hope you guys got clear, right? Okay, you cannot I think it wouldn't make it any difference. In that case also you will get a divergent answer only. You can take 0.001, but which limit you will take that we don't know ना। never कौन सा लिमिट हम 0.001 ले ले या 0.0001 ले ले या 0.4 times 01 ले ले, that I don't know from where to start. So this is the perfect way to solve such type of questions, right? That I don't know which limit I should take, right or not? Or otherwise you have to write ahead limit this tends to 0, you have to name some another thing and वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये लिमिट टेंड्स टू 0 हो रहा है। बट यार सिंपल ऐसे सॉल्व कर लो, ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात सबको? राइट गाइस? क्लियर चलो ये बताइए सब लोग को क्लियर हो रहा है? यस और नो? क्या ये क्वेश्चन सब लोग को क्लियर हुआ? वेरी गुड, आई वांट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू गाइस। चलिए सब लोग बताइए यार, ऐसा नहीं है कि 4-5 स्टूडेंट्स ही मुझे आंसर कर रहे हैं हमेशा, एकदम सही में क्लियर हो रहा है तो ही आप लोग मुझे बता सकते हो, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन जो आता है तो मिस्टेक्स जनरली होती है, ज्यादा मिस्टेक्स होती है, याद रखना। जब ऐसे क्वेश्चंस आते लोग होंगे -2 बोलने वाले, बट हमें दिमाग के अंदर ये घुसाना है ये हमारा इनप्रॉपर इंटीग्रल है, बिकॉज दे आर नॉट फुल। द गेट जो पेपर सेटर होते दे आर नॉट फुल, दे नो यू नो डिफाइनेट इंटीग्रल वेरी वेल, बट दे ऑल्सो नो दैट यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनप्रॉपर इंटीग्रल। सो वो क्वेश्चन वहीं से रखते हैं, राइट? तो हमेशा डिफाइनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो एक बार चेक कर लो वो इनप्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं, राइट? इनप्रॉपर इंटीग्रल नहीं होता तो हमारे पास काम आसान हो जाता। क्लियर ये बात? एवरीवन, एवरीबॉडी गॉट क्लियर दिस पॉइंट? वेरी गुड, चलिए आगे। वेरी गुड, ओके, करेक्ट। चलो अब इवन और ऑड की बात तभी आती है ना फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। यार मैं अभी भी बता रहा हूं, इधर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो तुम क्यों -1 to 1 पे वहां पे वो चेक करने जा रहे हो? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बिटवीन देम, ठीक है? चेक करना पड़ेगा ना एक बार तो, चेक आप लोग को देखना पड़ेगा ना कि कोई पे कंटिन्यूटी चेक करना, मतलब आपको यही चेक करना कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। जस्ट यू हैव टू चेक दैट ओनली। I have no points where my function is sorry, I have no points. If I am having no points where function is not defined, then you can use that thing -a to a f of x even and odd. But if I am having the point, that at some point I am getting the function value is not defined, so at that time you have to use the technique of improper integral। ठीक है? नॉट कंटिन्यूस। 0, यस आपने 0 देखा तो वहां पे आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो, और फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, चलिए आगे। सपोज चलो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, 0 से 3 1/x² - 3x + 2dx, और अगर इसको सॉल्व करना है तो ऑब्वियस बात है हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार जो है ना हम लोग इसको वो कर लेते, फैक्टराइज कर लेते। ये फैक्टराइजेशन आराम से हो जाएगा ना, ये फैक्टराइजेशन आराम से हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा x - 3 into 3 1 so x - 1, सो ये मेरा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। करेक्ट और नॉट? ये मेरा हो गया फैक्टराइजेशन। सही लिखा ना मैंने?
2, okay, x minus 2, sorry, x minus 2, sorry, x minus 2 and x minus 1. Okay guys, x minus 2 and x minus 1. So ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया, राइट, 1. सो करेक्ट. देखो अब कैसे तुमने पकड़ लिया. अब डायरेक्टली इधर तुमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया होता, हमें पता ही नहीं चलता ना सर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल. यस, नाउ इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल बिकॉज एट x is equal to 1 function is not defined, at x is equal to 2 function is not defined. See guys, here this is a pure case of improper integral of second kind, राइट और नॉट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड. जब ऐसा क्वेश्चन आए तब हमें कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को इसको जहां जहां पे भी डिसकंटिन्यूअस है वहां पे इसको स्प्लिट कर देना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को और अच्छी तरीके से लिखना चाहूंगा मैं, ये फंक्शन को और अच्छी. सो यू कैन राइट 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 एज व्हाट, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. चलिए अब ऐसा लिख सकते हो ये फंक्शन को, यस और नो, राइट. ये तो मैंने वो कर दिया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन हो गया ना ये, राइट. यू कैन राइट दिस थिंग, सी ओवर हियर, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, करेक्ट. सो ये मैंने सही लिखा ना, 1 अपॉन x माइनस 2, इस चीज को मैंने सही लिखा, बताओ मुझे यस और नो, करेक्ट. अच्छा, ओके, x माइनस 2 और x माइनस 1 इधर लिखेंगे, करेक्ट. 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. अब ये सही है, अब चेक कर लो, ये यही आंसर आ जाएगा. अब चेक कर लो, यही आंसर आ जाएगा. क्लियर ये बात, अब सही है ना, अब सही है, ठीक है, करेक्ट, अब सही हो जाएगा. ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से, तो अब इस इंटीग्रल के पास मेरे पास ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 3. नाउ आई कैन राइट ओवर हियर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, x माइनस 1 dx. क्लियर ये बात, ओके. देन अब मेरे पास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दो थे, एक 1 पे भी था और एक 2 पे था. तो मैं अब क्या करूंगा, पहले 0 से 1 इसको चेक करूंगा, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, सॉरी मैं 3 लिख दे रहा हूं यार बार बार, ठीक है. 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, करेक्ट, मैंने लिखा ये. फिर प्लस हम लोग, ओके, इधर dx लिखना रह गया, dx. फिर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 से लेके 2, अगेन आई कैन राइट ओवर हियर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx हो गया ये. प्लस आप लोग के पास अगेन 2 से लेके 3 तक, क्योंकि आई एम हैविंग 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस 3 इंटीग्रल. सो दिस इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx. ठीक है, तो पहले मैं बारी बारी से एक एक सॉल्व कर दूंगा, ठीक है. तो फर्स्ट आई एम सॉल्विंग दिस वन इंटीग्रल, दिस I1 ओनली. सो मेरा I1 जो है वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. क्लियर. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन का जो डायरेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1. क्लियर लिखा मैंने, ये ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ये डायरेक्ट आंसर. ये पता चला ना, 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है ln x माइनस 2 और 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है ln x माइनस 1. सो दोनों के बीच में मैंने माइनस साइन था, तो इसको मैंने कर दिया इस तरीके से 0 to 1. नाउ इफ यू पुट ओवर हियर द वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो फर्स्ट केस के अंदर आपका 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 अपॉन, नीचे अगर 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, और माइनस अगर आप इधर रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका ऊपर जो है 0 लगोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और नीचे आप लगोगे तो ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा. अब आप देखो ln ऑफ minus 1, ln of you can write this minus 1 upon 0. So guys, this is your infinity, right? This is your infinity, ln of infinity. क्लियर ये बात, राइट. सो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज ln ऑफ इंफिनिटी. अब इधर कुछ भी आ जाए, ln ऑफ इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट. ln ऑफ इनफाइनाइट आपका ये जो फंक्शन है ln ऑफ इंफिनिटी. अब आप बोलोगे सर ये माइनस 1 अपॉन 0, अरे यार ln के अंदर ये हमेशा मोड में होता है, ये हमेशा मोड के अंदर होता है, इसलिए ये मोड के अंदर होगा, तो माइनस 1 अपॉन 0 को हम 1 अपॉन 0 लिखेंगे, इसलिए मैंने इंफिनिटी लिखा. एक्चुअल में माइनस 1 अपॉन 0 माइनस इंफिनिटी होता है गाइस, बट ln के अंदर ये चीज मोड के अंदर होती है, इसलिए इसको मैंने इंफिनिटी लिखी. ठीक है, ये भी चीज समझने लायक है. बाकी फिर आप लोग वहां पे गलती कर दोगे, ये ln के अंदर था इसलिए मोड के अंदर माइनस 1 अपॉन 0, इसलिए प्लस प्लस इंफिनिटी लिखते, और ln इंफिनिटी जो है ना वो इंफिनिटी होता है. ln इंफिनिटी वो आपका इंफिनिटी होता है. क्लियर, ये बात किसी को पता है ln इंफिनिटी इज इंफिनिटी और नॉट, राइट. और आगे आपका तो सॉल्व करने की बात ही नहीं हुई ना, ये आपका ही डाइवर्जेंट आ गया.
पहला ही केस आपका डाइवर्जेंट आ गया, मतलब टोटल जो पूरा आंसर है ना, ये इंटीग्रल जो पूरा है ना, वो भी आपका डाइवर्जेंट इंटीग्रल होता है। ये पूरा इंटीग्रल आपका कैसा हो जाता, डाइवर्जेंट हो जाता। बिकॉज इफ आई एम गेटिंग ऑल दिस थ्री इंटीग्रल एज योर कन्वर्जेंट, अगर तीनों तीन मेरे कन्वर्जेंट में कुछ ना कुछ आंसर आ जाता तो हम बोल सकते थे ये इंटीग्रल मेरा कन्वर्जेंट है, बाकी ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट है, बाकी ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट है। राइट, सो यू गॉट दिस पॉइंट गाइस, एकदम क्लियर हुआ? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए श्रोत। सर अगर हम यहाँ ऐसा करें कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है 0 to 3 into 1 minus x by 2 minus x by 1। सर वो समझ गए कि यहाँ पे इम्प्रॉपर है, तो सर ऐसा करें कि सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दें, जैसे कि x minus 2 dx को लिमिट दे 0 to 3, सिमिलरली x minus 1 को, और फिर जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रहा है मतलब x minus 2 में 2 पे डिसकंटिन्यूटी, तो उसे भी दो दो इंटीग्रेशन में तोड़ दे, 0 to 2 एंड 2 to 3। सिमिलरली x minus 1 के लिए 0 to 1, 1 to 1 to 3, इस तरह से ब्रेक कर दे सर, तो ज्यादा इजीली नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब वो सेम ही हुआ ना श्रुत, मतलब तुम इतना बड़ा, मतलब देखो वो दोनों चीज, व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल इज दैट आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि ये 0 to 3 से मैं कर लूंगा एक इंटीग्रल में 1 minus x 1 upon x minus 2 dx कर दूंगा, और एक 0 से 3 तुम कर दोगे 1 upon x minus 1 dx, फिर इसको ब्रेक करोगे एज ये 2 पे इंटीग्रल है तो इधर दो पार्ट आएगा और इधर दो पार्ट आएगा, ऐसा बोलने जा रहे हो ना श्रुत तुम लोग? यस सर, यस राइट सर। ना? तो ये तो सेम ही हाँ काम तो सेम ही हो गया ना श्रुत, मतलब ये तो काम सेम ही हो गया, इधर चार पार्ट हो गया, तो मतलब आप लोग के पास इजीली ln2 एक मिल जाएगा, तो मतलब जो है इंटीग्रेशन आप लोग कैसे भी कर लो, मैंने उसको पूरे एक साथ किया, आप उसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, बट इतना ही काम लगेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो इतना ही होगा, ठीक है? बिकॉज क्या करेंगे कि जैसे पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना, हाँ, सीधा तो ही वहीं हमें पे आप 0 लोग को to मिल जाएगा ना, सही बात है ना, वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा कि भाई 2 के अंदर ये डाइवर्जेंट हो गया, तो पूरा इंटीग्रल हाँ डाइवर्जेंट हो गया, ऐसे बोलने जा रहे हो ना? हाँ राइट? हाँ, पहले से भी दिख जाएगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो यू कैन डू लाइक दैट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? यू कैन डू लाइक दैट, क्लियर? ये बात कर सकते हैं ऐसे। चलिए, यस ओके, कोई डाउट है इधर? और कोई गाइस इधर कोई डाउट है? in almost all sum we get infinity, एक मिनट, we get infinity in discontinuity, yes, infinity मिलेगा डिसकंटिन्यूटी के अंदर, डिसकंटिन्यूस के अंदर हमारा वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा ना, इनफाइनाइट होगा, तो वो डिसकंटिन्यू, सो दैट इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस टॉप, वी हैव टू दिस मेथड, राइट? भाई सेकंड स्टेप जो है वो कौन सा सेकंड स्टेप, कौन सी स्लाइड पे? ये वाली स्लाइड पे सेकंड स्टेप में हम लोग ने ये सिंपल कुछ किया है नहीं ना, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया यार, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x minus 2 is ln x minus 2, राइट? ये इंटीग्रेशन, ओके। फर्स्ट वाली स्लाइड में सेकंड स्टेप कहां गया? ओके, फर्स्ट वाली स्लाइड पे, अरे यार ये तो मैंने इसको फ्रैक्शन किया ना, 1 upon x minus 2 upon x minus 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, इट इज 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 1, you can partial fraction this thing and you will get these answers, राइट और नॉट? पार्शियल फ्रैक्शन किया ना हम लोग ने इधर, और कुछ नहीं किया, ठीक है? तो जस्ट मैं श्रुत ये चीज रफ कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड ओवर हियर, सो जस्ट इतनी चीज मैं रफ कर रहा हूं, वो भी ब्रेक करके भी तुम कर सकते हो, और बाकी इधर हम लोग जो मैंने सॉल्व किया वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? क्लियर ये बात? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, ये आपको समझ में आया? राइट, ओके, डन। You can write directly infinite in improper. No, you cannot write. In some cases, there are some integrals which are convergent. Though they are having the divergent, right? मतलब वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा. So हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है. You cannot directly write if I am having one point as infinity. You cannot directly write, right? ये चीज याद रखना. राइट, ये हमेशा, इसलिए तो मैं ये मेहनत करवाना, और बाकी मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि अगर एक पॉइंट पे इन्फिनिटी दिखता है डायरेक्ट इन्फिनिटी, व्हाई आई वुड हैव सॉल्व दिस ऑल थिंग्स, राइट? मैंने सॉल्व क्यों किया फिर? चलिए, समझ में आया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनप्रॉपर इंटीग्रल? आई होप यू गाइस गॉट क्लियर अबाउट इनप्रॉपर इंटीग्रल कांसेप्ट, राइट? क्योंकि ये गेट के अंदर बहुत बार इधर उधर आप लोग को फंसाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग के पास एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिल गया, एक आपको मेथड मिल गया कि अगर मेरे पास इनप्रॉपर इंटीग्रल आए तो हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, राइट? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? Generally you used to ignore this topic, but I can say this is a very important topic, because if one question is asked and if it is of improper integral, you are solving by definite integral, it is more chance, they are having a larger chance of having your answer to be not correct, right? मतलब आपका आंसर करेक्ट नहीं हो सकता वहां पे, there is a great chance of that, ठीक है? So you have to use the concept of improper integral when the question is asked about improper integral.
क्लियर है गाइस, सब लोगों को क्लियर है, राइट? आपको ये भी क्लियर हो गया ना, ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, राइट? ln ऑफ इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया ना, यस और नो, राइट और नॉट? ओके, चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल गाइस, ठीक है? ये आप लोग का सारा जो केस था वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में था, ठीक है? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गामा एंड बीटा फंक्शंस, ठीक है? अब हम लोग इसको देखते हैं बीटा गामा फंक्शंस के बारे में, राइट? बीटा एंड गामा फंक्शंस, सी ओवर हियर, बीटा एंड गामा फंक्शंस बहुत सिंपल है, इट इज आल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है? तो हम लोग को इसके अंदर थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये गामा ऑफ एन जो है, गामा फंक्शन जो है, गामा ऑफ एन आप लोग ऐसे याद रखोगे, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, x टू द पावर माइनस 1 dx, एन ग्रेटर देन 0 के लिए ही गामा फंक्शन काम करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एन इज ग्रेटर देन 0 तभी आप लोग का आपको गामा फंक्शन है। सो गामा फंक्शन इज वन टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो एक फिक्स्ड इंटीग्रल है, और इसको हम लोग रिकर्शन मेथड, मतलब रिकर्शन मेथड मतलब सारी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 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 हम इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड गामा ऑफ 1, राइट? अगर मैं गामा ऑफ 1 निकालना चाहूंगा तो आप लिखोगे 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, x के ऊपर इधर x क्या लिख दोगे, n के जगह 1 लिख दोगे, 1 माइनस 1 0, तो x का पावर 0 dx हो जाएगा। So if you solve this thing, this will give you 0 to infinity e to the power minus x dx। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, इसलिए मैंने माइनस 1 को बाहर निकाल दिया इधर। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे इट इज वेरी सिंपल, दिस इज 1 अपॉन माइनस 1, x के जगह तुम रखोगे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0 आपके पास आ जाएगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। सो ये आपका आंसर जो है ना वो 1 बना के जाएगा। सो गामा ऑफ 1 का आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। गामा ऑफ 1 इज 1, करेक्ट और नॉट? ठीक है। सिमिलरली अगर आपको गामा ऑफ 2 निकालना होता तो n इज इक्वल टू 2 रखते, गामा ऑफ 3 निकालना होता तो n इज इक्वल टू 3 रखते। ऐसे करते करते आप सिंपली कोई भी गामा फंक्शन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? गामा फंक्शंस आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते, क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बट ये चीज समझ में आई, सिंपल चीज, गामा ऑफ इंटीग्रल ये याद रखना, e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब हमेशा याद रखना कभी भी एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन और x का कॉम्बिनेशन साथ में दिखे, एक्सपोनेंशियल और x का कॉम्बिनेशन साथ में दिखे और लिमिट 0 टू इंफिनिटी दिख जाए, मतलब इसको गामा से सॉल्व करने की ट्राई करना, इसको गामा से सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है? एग्जाम के अंदर भी ये चीज याद रखना। ओके, देखो देयर आर सम की पॉइंट्स ओवर हियर दैट यू हैव टू रिमेंबर। गामा ऑफ 1 इज 1, गामा ऑफ 1/2 ये रूट पाई, ये एक बड़ा सा डेरिवेशन आता था व्हेन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, राइट और नॉट? गामा ऑफ 1/2 इज रूट पाई, इसको प्रूव करो, ऐसा भी लिखा हुआ आता था। हम लोग सिर्फ वैल्यूज याद रखेंगे ना, आई डोंट रिक्वायर प्रूफ ओवर हियर, ठीक है? इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। देन गामा ऑफ n+1, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, गामा ऑफ n+1 इज n into gamma of n when n is greater than 0. When n is greater than 0, you can write gamma of n+1 is n into gamma of n, where and you can write n factorial if your n is positive integers। अगर मेरा n पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो तुम गामा ऑफ n+1 को n फैक्टोरियल, मतलब अगर मैंने ऐसा बोला गामा ऑफ 4+1, सो यू विल राइट डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, बिकॉज आपका ये जो n है, ये जो n है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और सपोज मैंने आपको बोला गामा ऑफ 1/2 plus 1, 1/2 plus 1, so what you will write, sir, this is equal to gamma of n+1, so ये हो जाएगा सर gamma of 1/2, gamma of 1/2, sorry 1/2 into gamma of 1/2, right? Gamma of n+1 is n gamma of n, so that is equal to 1/2 and gamma of 1/2 is root pi, so ये आपका आंसर हो जाएगा root pi by 2। Understood guys? Understood this thing? आपको समझ में आया? हेलो सर। राइट, हाँ बोलिए। नहीं सर, सर जब n इज इक्वल टू 4 है तो n ग्रेटर देन 0 हो गया, तो तब वो फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं ना हम? हाँ फर्स्ट यूज कर सकते हैं, बट वैल्यूज कैसे निकालोगे? तुम्हें गामा ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, 4 गामा ऑफ 4 ऐसा लिखते, फर्स्ट भी वैलिड है, बट 4 गामा 4 की वैल्यू निकालने के लिए फिर वापस तुम गामा फंक्शन में थोड़ी रखोगे। बट आई नो द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, आई नो द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, सो डायरेक्टली ये मेरा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, खत्म हो गया ना इधर काम आपका, समझे? हाँ सर। करेक्ट, सो दैट इज व्हाई आई यूज व्हेनेवर इट इज इंटीजर, यू ऑलवेज यूज फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है?
फैक्टोरियल नोटेशन वहां पे यूज करोगे। ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टी आप याद मत रखिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी तो हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो व्हाई वी हैव टू रिमेंबर सो मच, राइट। हम लोग इतना ज्यादा वैसे भी याद नहीं रहता, इतनी ये तीन चीज भी आप लोग को अगर याद रह जाती है एग्जाम के अंदर, ये याद आ जाता है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ को याद नहीं रखनी है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डोंट रिमेंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। ओके, next see over here, I am having the question 0 to infinity e to the power minus x, x to the power 4. Now compare with this gamma function, compare with this. So e to the power minus x and x to the power, I have just gamma function n minus 1 dx, तो इसको तुम बोलते थे gamma of n. So your 4 is your what, n minus 1, n minus 1 is equal to 4, n minus 1 is equal to 4. So n is equal to कितना हो गया, 5 हो गया आप लोग के पास, राइट। n is equal to कितना हो गया, आप चेक करो गामा फंक्शन, राइट। n is equal to 5. सो ये मेरा जो आंसर है, ये इंटीग्रल है, सीधे सीधा लिखोगे दिस इज गामा ऑफ 5। तो गामा ऑफ 5 मतलब क्या, इट इज 4 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 5 मतलब क्या, 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 24। 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया 24। क्लियर ये बात, चलिए समझ में आया। तो सीधा क्वेश्चन अगर मुझे ऐसा एक्सपोनेंशियल के अंदर दिख जाए और सीधा आंसर है ये, इसका आंसर दिस इज डायरेक्टली गामा ऑफ n, दिस इज डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल, योर आंसर इज 24। क्लियर ये बात, सब लोग को ये बात क्लियर हुई? यस और नो प्लीज बोलते जाइए आप लोग, यस और नो, करेक्ट। चलिए ओके गाइस, ये गामा पता चला आपको, नहीं पता चला? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यू डोंट अंडरस्टूड। ये मैंने डायरेक्टली ये इंटीग्रल को कंपेयर किया गामा फंक्शन के साथ और इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, राइट और नॉट? अरे यार, गामा ऑफ n प्लस 1, दिस इज नॉट 5 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 5 उससे कम, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू योर n फैक्टोरियल। So this is 5 is 4 plus 1, so that is why it is 4 factorial, right or not? That is why it is 4 factorial. देखो आप लोग इधर आप लोग ये नोट किया होगा, गामा ऑफ n plus 1 is n factorial. So अगर 5 आया तो उससे एक कम ले लेने का, गामा ऑफ 5 आया तो उससे एक कम का फैक्टोरियल, गामा ऑफ 6 सपोज आता तो उसके एक कम का फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल लिख देते। समझ रहे? ठीक है, समझ रहे? ओके, करेक्ट। चलिए आगे, समझ गए। ओके, देखो आगे, सपोज तो हम लोग है ना ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लेते, x का जो पावर हो वही, ठीक है। सो सही बात बोला ना, ये रिजल्ट हमारा डायरेक्ट हो गया कि अगर मुझे e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर p दिख जाए, वो p का फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दो, जैसे हम लोग ने इधर 4 का फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर आ गया था ना। तो अगर मुझे ऐसा दिख जाए, देन बाय गामा फंक्शन ये रिजल्ट एज अ रिजल्ट तुम्हें याद रह जाता है, और अगर एग्जाम में याद हो जाता है तो ये विद इन अ सेकंड तुम आंसर कर सकते हो। 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर p dx, डायरेक्टली लिख दो p फैक्टोरियल, ये हमेशा सही होगा ना, p फैक्टोरियल होगा। ये गामा ऑफ p है, ये गामा ऑफ तुम्हारा p प्लस 1 होगा। गामा ऑफ p प्लस 1 क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, गामा ऑफ p प्लस 1, अगर ऑप्शन में दिया हो ना ऐसा, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ p प्लस 1। So this is what p factorial, because your n minus 1 is p. So what is n? p plus 1. n minus 1 आपका p के बराबर हो गया ना, तो what is n? That is equal to p plus 1. Understood this result? Understood all of you guys? ये result समझ में आया सबको? Yes or no? Very good. चलिए क्लियर, प्लीज यार रिस्पॉन्स देना। मुझे लग रहा है कि आप लोग के एनर्जी डाउन है। ये समझ में आ रहा है गामा फंक्शन? बिकॉज यार ये क्वेश्चन आ सकता है। इफ p is integer, ऑब्वियस बात है ना, p is integer अगेन, यस दैट इज गुड। इफ p is integer, p आपका इंटीजर होगा तभी ये चीज हो सकता है पॉसिबल, करेक्ट। वो भी लिख के रखना बाजू में, p is integer, करेक्ट। चलो क्लियर, ओके, डन। आगे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट। ओके, सी और यार e टू द पावर माइनस x टू द पावर 7 dx, डायरेक्टली आंसर कितना 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बोले तो 720, 7 फैक्टोरियल बोले तो 720, ये याद होने चाहिए फैक्टोरियल्स बहुत सारे, राइट। अब तो हम लोग वैसे तो जेई के अंदर या 12th के अंदर सारे फैक्टोरियल्स याद रखते थे, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल हो जाता है 24 into 5 और 24 into 5, सो ये आई थिंक 720, यस 720 into 6 हो जाता, 720 into 7, 5040, करेक्ट। ये 6 फैक्टोरियल है, 720 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। और इंटू 7, तो दिस इज 5040, ठीक है। ये आपका 5040 हो जाता। क्लियर हुआ ये बात? एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया? यस और नॉट? यस, करेक्ट। आगे नेक्स्ट नाउ यू आर हैविंग बीटा फंक्शन, ठीक है। देखो फिर साथ में क्वेश्चन बीटा गामा फंक्शन एक साथ होते तो कैसे आते? सो बीटा ऑफ mn इज अगेन योर वन टाइप ऑफ इंटीग्रल
पर लिमिट्स इसकी 0 to 1 होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो गामा में 0 to infinity होनी चाहिए, बीटा फंक्शन में आपका 0 to 1 x to the power m minus 1 और 1 minus x to the power n minus 1 dx where m is greater than 0, n is greater than 0। जब भी फॉर्मेट ऐसा दिखे ना x into 1 minus x, x into 1 minus x, ये फॉर्मेट अगर आप लोगों को दिखता है, ऑलवेज यू यूज बीटा फंक्शंस, डायरेक्टली बीटा फंक्शंस आप लोग सॉल्व करने की ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल है बीटा फंक्शन का, और इसके प्रॉपर्टीज में अगर आप देखो इधर, तो एक सबसे अच्छी बात क्या है, तुम बीटा ऑफ एम एन बोल दो या बीटा ऑफ एन एम बोल दो, मतलब ये एम और एन की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 लिखा और 1 माइनस एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 लिख दिया होता, तो भी ये मेरा बीटा ऑफ एम एन ही बोला जाता, तो भी ये मेरा बीटा ऑफ एम एन ही बोला जाता। तो ये बात अच्छी है कि हमको एन और एम की पोजीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पावर देखना है, एक्स का पावर क्या है भाई, और 1 माइनस एक्स का पावर क्या है, फिर तुम उसमें किसी को भी बोल दो, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि बीटा ऑफ एम एन आप लोग साइन और कोसाइन के टर्म्स में ऐसा भी बोल सकते हो, या इसको ऐसे याद रखो, अगर 0 to π/2 sin p थीटा cos q थीटा आ जाता है, सो दिस इज 1/2 बीटा ऑफ p plus 1/2 और q plus 1/2, ऐसा भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, बीटा ऑफ p plus 1/2 q plus 1/2, राइट। ऐसे क्वेश्चंस ये प्रॉपर्टी आती थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन ही प्रॉपर्टी जो है बीटा फंक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बीटा ऑफ m into n is gamma of m into gamma of n upon gamma of m plus n। ये सारी आपने चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। when you are doing beta gamma function, I hope you have studied all these properties, थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया होगा इसके अंदर, राइट और नॉट। सो ये चीज हम लोग को याद रखनी है, तीन चीज के अंदर। पहली प्रॉपर्टी में तो कुछ याद रखने जैसा नहीं है, थर्ड तो वैसे ही इजी है, गामा ऑफ m into गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m plus n। द सेकंड प्रॉपर्टी आपका 0 to π/2 sin p थीटा cos q थीटा, ये हम लोग को सिर्फ एक बीटा के याद करना है, ठीक है। यस करेक्ट देवम, ये चीज के लिए आप लोग अगर ऐसा इंटीग्रल मुझे दिखता है तो मैं बीटा गामा यूज ही क्यों करूं, मैं डायरेक्ट वॉलेज इंटीग्रल ही क्यों ना यूज कर लूं, क्योंकि मुझे 0 to π/2 है तो मेरे को बीटा गामा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। यस देवम, पर ये प्रॉपर्टी इसलिए याद करना है हमें, क्योंकि अगर p और q इंटीजर वैल्यू नहीं हुआ तो वहां पे हमें बीटा गामा की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी ना देवम, समझ रहे हो तुम। अगर मेरा p और q इंटीजर नहीं हुआ एट दैट टाइम, बिकॉज they are having the general case, right। इसलिए अगर देखो p और q ये सबके लिए वैलिड होता ना वॉलेज इंटीग्रल, तो फिर ये लोग ने ये प्रूफ निकाला ही नहीं होता, ये लोग ने कभी ये प्रूफ निकाला। बट इफ आई एम नॉट हैविंग इंटीजर, सपोज sin to the power 1/2 और cos to the power 3/2 ऐसा बोल दिया, then you have to use beta gamma functions, clear ये बात। so Wallis integral is limited that p and q should be integer value, otherwise you have to use this beta gamma function, clear ये बात सब लोग को, राइट। ओके चलिए आगे देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ सी x to the power something and 1 minus x to the power something, तो इसको तुम n minus 1 बोल दो या m minus n बोल दो, कुछ भी बोलो, और ये 3 तुम्हारा n minus 1। सो m minus 1 जो है आपका, m minus 1 जो है वो आपका 2 के बराबर है, और n minus 1 जो है वो 3 के बराबर है। तो इधर से आपका m कितना हो गया, 3 हो गया, और इधर से आपका n कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये इंटीग्रल 0 to 1 है, यस 0 to 1 है, ये इंटीग्रल आपका बीटा ऑफ 3,4 हो गया। बीटा ऑफ 3,4 मतलब सर, ये बीटा ऑफ 3,4 मतलब गामा ऑफ 3 इंटू गामा ऑफ 4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3 प्लस 4, राइट। सो गामा ऑफ 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 4 मतलब एक कम उससे 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 7 मतलब उससे एक कम 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको तुम लोग को सॉल्व करना है, फिर इसको तुम लोग को इजीली सॉल्व करके आपको आंसर लाना होता है फिर, ठीक है। क्लियर ये बात, इसको तुम लोग को सॉल्व करके आंसर आप लोग इजीली ला सकते हो इधर से। सो दैट इज द विनिंग ऑफ, राइट। कितना आ गया आंसर, 1/60 आ गया, कोई बात नहीं, चलो जो भी आंसर आ जाए, ये तो सॉल्व करना आप लोग को आता ही है, वैसे भी ये चीज तो आप लोग को सॉल्व करनी आएगी, राइट और नॉट। बट द मेन थिंग इज यू अंडरस्टूड दिस थिंग गाइस, यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल वे में ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मेन है यार, ये क्वेश्चन समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, देखो अभी मैंने आप लोग को बताया था एक फोर्थ प्रॉपर्टी जो था गामा फंक्शन के अंदर, ये चीज हम लोग को पास है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e to the power minus 2x square x to the power 7 dx is equal to dash, राइट। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखो कि मेरे पास e के पावर और साथ में मेरे पास एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर माइनस समथिंग है और एक्सपोनेंशियल x टू द पावर, ये हमेशा गामा का केस बनता है, ये हमेशा। और इन्फिनिटी देखो, आपको लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी बताई हुई, हमेशा गामा का केस बनता है, बट एग्जैक्टली वो फॉर्मेट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट हम लोग बोल सकते हैं 2 to the power x स्क्वायर को तुमने सपोज ले लिया t,
तो जब तुमने 2 to the power x² को t ले लिया ना, तो इधर से तुम ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 4x dx इज इक्वल टू dt। सो इधर से आप लोग बोल सकते हो x dx इज इक्वल टू dt by 4, x dx dt by 4। चलिए लिमिट चेंज करेंगे, तो x अगर 0 होगा तो आप चेक करो t का भी वैल्यू 0 होगा ना, अगर x 0 हुआ तो t भी 0 हुआ, और अगर x आपका इन्फिनिटी हुआ तो t का भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, t का भी वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, राइट। सो अगर इसको मैं नेक्स्ट में t की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी में लिखूं, t की वैल्यू में 0 से इन्फिनिटी लिखूं, e टू दी पावर -2x स्क्वायर, e टू दी पावर -2x स्क्वायर, तो तुम बोलोगे सर ये e टू दी पावर मेरा -t हो गया, e टू दी पावर -t हो गया। अब इसको ध्यान रखना, देखो x टू दी पावर 7, अभी के लिए मैं x टू दी पावर 7 लिख रहा हूं, और dx के जगह में सॉरी अभी के लिए मैं इधर जो है वो x टू दी पावर 7 से एक x स्प्लिट कर देता हूं, इधर x टू दी पावर 6 लिख देता हूं और x dx लिख देता हूं। x dx के जगह तुम सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हो, x dx के जगह तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो dt by 4, तो ये मेरा हो जाएगा dt by 4। सो अब मेरे इंटीग्रल में 1/4 आगे आ गया, 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर -t। अब देखो तुम x के टर्म्स में तो नहीं लिख सकते, सारे चीज t के टर्म्स में लिखनी है, सारी चीज t के टर्म्स में लिखनी है, तो हमारा 2x² जो था वो t के बराबर था। सो मेरा t जो है ना वो एक्चुअल में सॉरी तुम्हारा x² जो है ना वो t by 2 हो गया, तो इधर से तुम्हारा x टू दी पावर 6 है, तो वो x² का क्यूब हो जाता वो, सो t by 2 का इधर आप लिख दोगे क्यूब, ये dt हो गया। सो इधर से आप लोग के पास आ जाएगा 1 बाय ये 2 क्यूब 8 होता है, 8 4 जा 32 बाहर निकल जाता, 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर -t इंटू टी क्यूब dt इंटू टी क्यूब dt। सो ये डायरेक्टली तुम लिख सकते हो सर 1/32। अब ये डायरेक्टली देखो ये आपका हो जाएगा t का क्यूब, सी ओवर हियर दिस इज n-1 इज इक्वल टू 3, n-1 तो डायरेक्टली हो गया ना p फैक्टोरियल, ये डायरेक्टली हो गया ना p फैक्टोरियल, राइट और नॉट, दिस इज n-1, सो ये डायरेक्टली लिख दो इधर 3 फैक्टोरियल, ये डायरेक्टली हो गया आपका 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये नीचे आप लोग का 2 से कैंसिल हो गया 6, ये 3/16 का आपका आंसर बन जाता, 3/16 आप लोग का आंसर बन जाता। समझ आ रही है बात, वेरी गुड, 3/16 आपका आंसर बन जाता, क्लियर। ये डायरेक्टली आपका गामा ऑफ 3, ये आपका गामा ऑफ 4 बन जाता, ये जो इंटीग्रल है ना ये गामा ऑफ 4 हो गया, गामा ऑफ 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो आपका ये आंसर बन जाता डायरेक्टली 3/16। आई होप यू गाइस गॉट दिस थिंग, राइट। आई होप दैट आप लोग को ये चीज समझ में आई सब लोग को, यस और नो, राइट। सो दिस इज देखो क्लियर कट एग्जांपल ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड इन गामा फंक्शन, राइट, क्लियर कट एग्जांपल ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड इन गामा फंक्शन। ठीक है यार, ऐसा पूछ सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेंगे, ये कभी अगर आ गया ना तो आप ही ऐसे होंगे जिनको समझ में आया होगा, इसको सॉल्व कर पाओगे, ये दिस आर द रैंक इंप्रूविंग क्वेश्चंस। ठीक है, रैंक तुरंत इंप्रूव होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से। इजी क्वेश्चंस तो पूरे सबको आएगा ना, अगर इजी अगर क्वेश्चंस हो गए तो ऐसे सबको, तो एक आध कहीं पे डिफिकल्टी लेवल दिखता है मुझे, तो वहां पे ये चीज हम लोग को काम में आ सकती है। क्लियर आइडिया सब लोग को, राइट, एकदम क्लियर क्लैरिटी के साथ आइडिया आ गया सब लोग को, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ओके, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास है, आई वांट टू गिव दिस क्वेश्चन इन होमवर्क सो दैट जब आप आज ही इसको जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपको पास क्या हो जाएगा कि एक आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, यू कैन टेक x³ इज इक्वल टू t और वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो एक आपको आइडिया आ जाएगा और वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट सेकंड आंसर देखना था फर्स्ट, ओके, एक मिनट, चलो ये आंसर हो गया ना, आंसर इज 3/16, सही है श्रुत, क्लियर, आंसर दिख रहा, ओके, चलिए ये हो गया। और दूसरा ये पार्ट हो गया आप लोग का 0 से 1 log ऑफ 1/x, 0 से 1 log ऑफ 1/x का क्यूब है। ठीक है, और ये dx है, तो इसको अगर तुम लोग को सॉल्व करना है तो सिंपल है ना, लेट आप लिख सकते हो ना, लेट log ऑफ 1/x इज इक्वल टू t बोल दिया तुमने। ठीक है, देखो इधर ये ध्यान से देखना, लेट log ऑफ 1/x इज t, सो आप बोलोगे सर 1/x वो मेरा e टू दी पावर t हो गया, राइट और नॉट, 1/x इज e टू दी पावर t, तो आपका x हो गया e टू दी पावर -t, x हो गया आपका e टू दी पावर -t। अब लिमिट्स चेंज कर सकते हो, जब x की वैल्यू 0 हो जाए तब आप बोल सकते हो कि सर मेरा, आप देखो x की वैल्यू 0 हो जाए ना, x की वैल्यू, तो उसका मतलब e टू दी पावर -t की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी, e टू दी पावर -t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब तुम बताओ t की वैल्यू क्या होगी, बताओ मुझे,
ई टू द पावर माइनस टी कब आ सकता है जीरो? जब टी इंफिनिटी हो जाए, करेक्ट और नॉट? ये सही लिखा कि नहीं? ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, अब जब टी की जगह इंफिनिटी रखोगे तभी वो ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी जीरो आ सकता है ना, राइट और नॉट? अब अपर लिमिट आपका 1 है, तो जब आपका x 1 के बराबर हो जाए तो आप बोलोगे ई टू दी पावर माइनस टी जो है वो 1 के बराबर हो जाए। और ई टू दी पावर माइनस टी 1 के बराबर कब हुआ? जब आप बोलोगे टी के जगह आपने जीरो रखा तब, टी के जगह आप जीरो रखा तब, तो आपका लिमिट चेंज हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गया, बाकी सारी चीज ओके। इधर से मेरे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर, dx इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस टी dt, ऐसा हो जाएगा। अब सारी चीज इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सारी चीज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सी ओवर हियर, ध्यान से देखो, तो हम लोग इधर से लिखेंगे जीरो से तो इधर हमारे पास जीरो पे इंफिनिटी, तो पहले हमारे पास आएगा इंफिनिटी टू जीरो, इंफिनिटी टू जीरो, लॉग ऑफ 1/x को तुमने बोला था सर ये टी हो गया, और टी का वैल्यू इधर क्या है? क्यूब है, सो ये दिस इज टी क्यूब, और dx के जगह हम लिखेंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस टी dt। सो सर ये क्या हो गया? आपके मास माइनस है, लिमिट्स को चेंज कर दो, राइट? तो ये जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी क्यूब dt। नाउ दिस इज वेरी सिंपल अगेन गाइस, ये आपका आंसर कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर इज 6। 3 फैक्टोरियल, आंसर इज 6। समझ रहे हो ना तुम लोग? देखो ये कैसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये सीधा आपको ये लगता ही नहीं, ये क्वेश्चन देख के लग ही नहीं रहा है कि ये गामा फंक्शन में जा रहा है, बट ये अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है ना तो ये सीधे सीधा गामा फंक्शन में क्लैरिटी के साथ निकल जाता है, क्लैरिटी के साथ। बिकॉज आप log ऑफ 1/x का इंटीग्रेट कैसे करोगे फिर? तो याद रखो जब भी ऐसा दिखता है log ऑफ 1/x, तो उसको भी ट्राई करो गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये चीज आपका सीधे सीधा आंसर क्लियर हो जाता है। क्लियर हो रही है बात सब लोगों को गाइस? ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है ना सब लोगों को? यस और नो? जनरली गामा फंक्शंस होते, बीटा फंक्शंस के क्वेश्चंस बहुत ही कम होते, राइट? अब देखो ये एक बीटा फंक्शन से ये लोग ने बोला है सॉल्व करने के लिए, बट हम इधर बीटा फंक्शन क्यों यूज करें? हमारे पास तो एक डायलेक्स वॉलिस इंटीग्रल है ना, वॉलिस इंटीग्रल से ये डायरेक्टली सॉल्व कर दो, हम लोग क्यों बीटा फंक्शन यूज करें? राइट और नॉट? 0 टू π/2 भी है और ये दोनों इवन नंबर भी है, तो हमें पता है 2 - 1 का, इसका आंसर तो सीधा हो गया ना, 2 - 1 का डबल फैक्टोरियल, फिर 4 - 1 का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 + 4 मतलब 6 का डबल फैक्टोरियल इनटू के, और दोनों इवन है तो के की वैल्यू π/2। देखो कैसा याद रहना चाहिए, राइट? ऑल दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, राइट? मुझे तो याद रहता है, बट आप लोगों को याद एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीज आनी चाहिए, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, मैथ्स के अंदर इजीली स्कोरिंग अप कर सकते हो। ठीक, क्लियर ये बात एकदम? और ये वाला जो क्वेश्चन है, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू डू x² इज इक्वल टू टी एंड जस्ट यू डू इन होमवर्क। ये कौन सा आप लोग को बना रहा है? ये आप लोग का बीटा फंक्शन बना देगा, ये आपका बीटा फंक्शन है। जब आप x² इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे एकदम बीटा जैसा फॉर्मेट आ जाएगा, और फिर इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, होमवर्क के अंदर मैं आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करो और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। समझ आई बात सब लोग को? क्लियर ये बात? राइट और नॉट? ठीक है, ओके क्लियर। एक बार इसको करना तो ये आप लोग के पास एकदम इजीली हो जाएगा, राइट? सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर इनप्रॉपर इंटीग्रल एंड बीटा गामा फंक्शंस। ठीक है, ये सारा आप लोग के पास था इनप्रॉपर इंटीग्रल और बीटा गामा फंक्शन के ऊपर। दिस वाज द लेक्चर of about only this improper integral and beta gamma functions. In the evening class we will study about the multiple integrals, that is double integral, triple integral, and all the applications of that, right? In the today's evening class we will study all that particular cases of double integral, and that will complete our calculus portion of engineering mathematics. ठीक है, engineering mathematics का calculus portion जो है ना वहां पे खत्म होगा। क्लियर ये बात सब लोग को? राइट और नॉट? बीटा का यस, बीटा का एक्सप्रेशन में आप लोग को दिखा। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। अगर कोई डाउट, अगर आप लोग के पास कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग, राइट? यू कैन लीव द मीटिंग। हाँ, जो आप लोग का एक डाउट था अभी, जो बच्चे का था, आई थिंक दर्शन का डाउट था, दर्शन वो इवनिंग क्लास में ले ले जरा, बिकॉज अभी ये टाइम हो गया है ना, आई हैव सम वर्क ऑल्सो, राइट? ये 9 बजने आ गया और मुझे थोड़ा सा काम भी है, तो वो मैं आपको इवनिंग में करवा देता हूँ। ठीक है, राइट? नाउ टाइम के बहुत प्रॉब्लम होती है, एक डाउट सेशन अलग से रखना पड़ता है, ऐसा लग रहा है मुझे। आई हैव टू कीप वन डाउट सेशन ओनली, राइट? ओके, एक मिनट जरा, मैं आपको, यस, बीटा वाला एक्सप्रेशन हो गया ये। ठीक है, ये बीटा वाला एक्सप्रेशन। ठीक है सर, ओके, वेरी गुड। ये हमारा टाइम बहुत कम है, मतलब ये दिस इज द लास्ट फेज एंड द गेट इज कमिंग अप, राइट? इफ आई हैव टेकन योर मैथ्स अर्लियर, मतलब मैंने आपका मेन मैथ्स पहले से लिया होता, इट इज समथिंग अराउंड 60 to 80 आवर्स,
and in that I used to cover each and every topic. I have taken maths in GATE IC Surat, right? Surat and मैं बड़ौदा के अंदर मैंने लिया हुआ है वहां पे, और even that in the before lockdown I have taken at Rajkot and Ahmedabad center also one time. तो वहां पे हम लोग पूरा मैथ्स जब करते तो कोई डाउट्स नहीं रहते जनरली. ये गेट एकदम नजदीक है इसलिए ये हो जाएगा. ठीक है. Okay, so Prachi is telling me differential equation, guys. अगर time permits है, if we will get some time after probability, I will obviously teach differential equation from after that, right? I want to teach all of you, but there is a limitations in time, right? Here I want to teach you. You can see over here I am taking each and every topic which is important and which is in GATE syllabus. ठीक है. हमने कैलकुलस के अंदर शुरू तुम बोल रहे हो कैलकुलस के अंदर कोई टॉपिक यू आर टेलिंग अबाउट द कैलकुलस. आई नो. सी ऑल ओवर मैथ्स के अंदर मतलब आई डोंट नो यू हैव व्हिच टॉपिक यू हैव स्टडी, राइट? शुरू बिकॉज आई एम नॉट नोइंग आपने किससे पढ़ा है, मतलब मैथ्स यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी और यू आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम मैथ्स? आई डोंट नो. फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग. ओके, सो आप मेरे पास से पहली बार मेरे पास से फर्स्ट टाइम तो आपने ये इन विच ईयर यू आर गिविंग गेट? श्रुत, इन विच ईयर यू आर गिविंग गेट? दिस ईयर ओनली? 23, 22. Okay, both. Then for 23 you can easily cover all the topics of mathematics, right? Because उसके बाद तो वापस एक मैथ्स की बैच चालू हो जाएगी तो उसके अंदर तो कवर हो सकता है. ठीक है, कोई बात नहीं. ये वाली पीडीएफ में आज ही शेयर कर दूंगा. लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, करके मत जाओ. अभी के गेट के लिए कोई वेक्टर स्पेस उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं लीनियर अलजेब्रा के अंदर. ठीक है. इस बार के लिए आप लोग के मतलब कैलकुलस के लिए कैलकुलस में मैंने सारा कवर करवा दिया, लिनियर अलजेब्रा में पूरा कवर करवा दिया, और आप लोगों को मैं प्रोबेबिलिटी भी मोस्ट प्रोबेबली पूरा कवर करवा दूंगा. तो ये 3 टॉपिक में कुछ बाकी नहीं रहे. फिर आपके पास आप कौन सी ब्रांच हो दैट आई डोंट नो, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम सीएसआईटी देन सीएसआईटी के लिए पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है. ओके, मैकेनिकल के लिए फिर आप लोग के जो टॉपिक होंगे वो थोड़े से बच जाएंगे मैकेनिकल के लिए फॉर दिस टाइम, राइट? बट आई हैव माय पीडीएफ फॉर मैकेनिकल ईसी, मतलब सबके लिए मैकेनिकल ईसी जो भी है मेरे पास पीडीएफ है, वो मैं आप लोग को वापस वो शेयर कर दूंगा, आप वो सारे टॉपिक. बट दोज हु आर गिविंग गेट 23 दे हैव टाइम एंड दे कैन कवर द रिमेनिंग टॉपिक आफ्टरवर्ड आल्सो. बट दोज हु आर गिविंग गेट इन 22 दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड इन दैट I have covered almost 7 to 8 marks gate topic, that is up to probability and statistics में अगर मैं करवा दूंगा तो ये 7 से 8 मार्क का पूरा आपका गेट का जो है सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें. दिस 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर टाइम मिले तो देखो गाइस, मुझे टाइम मिलता है, अगर मेरे पास टाइम है और आपके पास टाइम है, आई कैन इजीली ब्रीफ आउट थिंग, राइट? बट आई हैव the management has given certain number of hours and I have to teach only in that hours only, right or not? So if I am getting more hours then I can teach you more, right? But as the gate I don't used to teach the full mathematics in 40 or 40 to 42 hours, but मैं आप लोग को जो है वो ऑलमोस्ट 60-70 आवर्स लेता हूँ पूरा मैथ्स को पढ़ाने के लिए, ताकि सारे टॉपिक्स आपके ब्रीफली हो जाए. ठीक है. यस, मैं पीडीएफ होगी, मैं वेक्टर्स की जो भी पीडीएफ है वो आपको मैं भेज सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, डन, राइट? वो टेलीग्राम चैनल के अंदर यस 10 मार्क कवर हो जाएगा. हाँ, 10 मार्क कवर कर सकते हैं शुरू. यू कैन इजीली कवर 10 मार्क्स, दैट इज ऑफ नो, दैट इज यू कैन इजीली कवर, राइट? हेलो सर. हाँ जी, बोलिए सर, हमने आज जो स्टार्टिंग में फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड देखा, तो हाँ. हमने उसमें बोला था कि अगर P पॉजिटिव है तो वो कॉन्वर्जेंट है और P अगर नेगेटिव है तो वो डाइवर्जेंट है. तो वो हम न्यूमरेटर में उसको शिफ्ट करके देखेंगे या फिर डिनोमिनेटर में रख के देखेंगे? तुम फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट कैसा था. देखो इधर फॉर्मेट, तुम अगर वो फॉर्मेट चेक करोगे, अगर मैंने वो चीज बोली है, राइट? 1 मिनट, सी वो स्लाइड में निकाल देता हूं, इन प्रॉपर इंटीग्रल, और ये फॉर्मेट तुम देखोगे इधर मेरे पास ये फॉर्मेट का है, नीचे है ना, ये फॉर्मेट नीचे है ना निशर, तो मैं नीचे में ही चेक करके देखूंगा, समझे? हाँ सर. डिनोमिनेटर में चेक करके देखूंगा. ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना है ना, फॉर्मेट इज मेन थिंग. क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड डे, राइट? अब सर, हम लोग मीटिंग, हाँ जी बोलिए सर
टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? मैंने सर्च किया तो नहीं आ रहा है, वो मेरे को लिंक गेट से ज्वाइन नहीं इंजीनियरिंग हो पा मैथमेटिक्स, रहा। कल एक लिंक भी भेजा ना, चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स, इट इज द नेम ऑफ दैट चैनल, चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स ऐसा एक नाम है, और गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो मेन चैनल का नाम है मेरा। वो लिंक में चिंतन सर इंजीनियरिंग मैथ्स ऐसा लिंक है। कल एक बच्चे ने इधर चैट के ऊपर रखा हुआ था, राइट और नॉट, तो वहां पे आप लोग बोल सकते हो which book for maths is best for practice. That see I have books of all authors, right, मतलब मेरे पास तो बुक्स है ना सारे ऑथर की है, बट यू कैन टेक अप द बुक ऑफ गेट एकेडमी, जो भिलई वाला है गेट एकेडमी, उमेश सर का जो एक है, वो बुक अभी नया जो है वो एक अच्छा बनाया हुआ है वो बुक, राइट। सो इट इज हैविंग अ वेरी प्रिसाइज एंड ऑल द गेट क्वेश्चंस विद इजी सॉल्यूशंस ऑफ गेट, ठीक है। तो यू कैन टेक एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज में, देखो यार आप लोग के पास आई एम राइटिंग द कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आप लोग को वो जो गेट एकेडमी से कोई भी बुक निकालना है तो यू कैन यूज माई कोड ऑल्सो, बिकॉज आप लोग जो है वो कोड यूज करके आप लोग को कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल सकता है फॉर टेकिंग इंजीनियरिंग मैथ्स बुक्स, राइट और नॉट, बिकॉज I have a relation with that institute also, so they used to directly give me one code, and if I share that code to the students, they can easily get very good discount on the books of Gate Academy, right or not. So वो भी एक है आपके पास, फिर जो भी ऑथर, कोई भी आप ऑथर ले लो, मतलब मैंने अभी जो है सारे गेट के उसी के अंदर से क्वेश्चंस लिए हुए, और एक आईएएस मास्टर हो गया आपके पास, मेड इजी भी हो गया, तो एनी वन बुक यू कैन टेक नाउ, जो बुक आपको पसंद आए वो बुक आप लोग ले सकते हो, ठीक है। हाँ, पीआई सब टॉपिक के लिए इतना ही है, ठीक है। गेट 23 के लिए मैंने आपको बताया वो बुक आप लिख सकते हो। हाँ, वही चैनल है, 73 सब्सक्राइबर्स, यस करेक्ट। ये चैनल मैंने अभी बनाया हुआ है, राइट, दिस इज द न्यू चैनल। ये जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था नोट्स के लिए, मैंने ये चैनल अभी बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए वहां पे सिर्फ आप लोग ही दिखोगे, करेक्ट ये बात, ओके ठीक है, चलिए। सो कैन आई लीव नाउ गाइस? Thank you very much to one and all over here. And if you want to take some GATE book for engineering mathematics, you can contact on with this number. I can give you code on this number, and you can directly, I can make you talk with direct management of GATE Academy over there, and that book will be transferred to you, right? So वो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, चलिए, okay. Thank you very much, guys. Thank you very much.